Welcome students. So we are going to study the process of protein synthesis, which is we have divided into two different stages. Number one is amino acylation of the tRNA, and number second is the steps involved in peptide formation, that is polypeptide formation. So what it is, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा कि हाउ द tRNA इज चार्ज एंड हाउ द अमीनो एसिड इज अटैच्ड टू द tRNA. So that process will help here. Now what is the requirement again? The process of polypeptide formation is divided into different three stages. Number one, initiation. Number two, elongation. And number third, termination. Okay. Basically, these three steps are found in prokaryotic as well as eukaryotic organism. But some differences are there. But the theme or the process is very similar. So along with some of the differences, we'll study this process of पेप्टाइड फॉर्मेशन की ये प्रोसेस हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं. सो इसकी सबसे पहली जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन. इनिशिएशन विल बी सीन हियर. ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA is followed by translation very immediately in case of prokaryotic organism, because in case of eukaryotic organism, the mRNA which is synthesized in the nucleus must be carried to the cytoplasm, and in nucleus it is having some unwanted nucleotide sequence which are called as introns. So introns must be removed. So for the protection of the mRNA, it must be protected from both the ends. Therefore, it is capped by guanine, and from the posterior end, that is 3' end, it is protected by poly A tailing. So capping, splicing, ligation, that is joining, and tailing, these processes are not required in case of prokaryotic organism or cell, and therefore it is immediately following the process of transcription, that is translation is following the process of transcription very immediately. So we'll see how it is carried out. सबसे पहले ये हमारा mRNA. This mRNA is having 5' end and 3' end. 5' की तरफ कुछ untranslated regions are there और 3' की तरफ भी some untranslated regions are there. तो यहाँ पर ये प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए, इसको सिग्नल मिलने के लिए, प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के लिए, पहला tRNA that is carrying the amino acid is bound to the initiation codon called as AUG. होता है स्टार्टिंग कोडन. इसके पहले कुछ सीक्वेंसेस है जैसे कि 8 to 13 सीक्वेंसेस आर देयर, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस विच आर लाइकली AGG, AGGGU etc. 8 to 13 are there. So these are complementary to the 16S ribosomal RNA, which is found in smaller subunit of राइबोसोम. राइबोसोम का स्मॉलर सबयूनिट है, उसके पास ये कॉम्प्लीमेंट्री. तो that smaller end, smaller unit of ribosome will bound to these sequences which is located toward the 5' end before starting codon, that is AUG.
तो इसके लिए आसानी होगी, तो स्मॉलर सब यूनिट यहां पर बाइंड होने लगा। अब इसके पास स्मॉलर सब यूनिट के पास कुछ फैक्टर्स है, दे आर कॉल्ड एज इनिशिएशन फैक्टर, IFS, इनिशिएशन फैक्टर्स। वो कितने? सो IF1, IF2 एंड IF3। ठीक है, अब इनका रोल क्या है कि सबसे पहले इस स्मॉलर सब यूनिट को जो यहां से कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को अटैच होके सामने आ गया, तो इट विल बी फिक्स्ड टुवर्ड द AUG कोडॉन। इसके पहले यहां पर इनिशिएशन फैक्टर बाइंड हो जाते टू अवॉइड द बाइंडिंग ऑफ लार्जर सब यूनिट टू दिस स्मॉलर सब यूनिट। नहीं होना चाहिए बाइंडिंग अभी। And thereafter, the first tRNA which will read this triplet codon, which is complementary, it means it is UAC, ऐसा वो tRNA है, and it is carrying first amino acid. That first amino acid is called as F-mate. F means formulated methionine. तो फॉर्मुलेटेड का F लिया और मिथियोनिन का मेट लिया, सो F-mate tRNA will be brought here to bind to the AUG codon। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद यहां पर लार्जर सबयूनिट आ जाएगा एंड लार्जर सबयूनिट विल बाइंड। एंड नाउ यहां पर बाइंड होने के बाद ये प्रोसेस है इनिशिएशन की, ये लगभग कंप्लीट होगी। नाउ ये पूरा राइबोसोम फॉर्मेशन हो गया। ये दोनों सब यूनिट ऐसे हैं, दे आर इरेगुलर, जैसे कि दो पत्थर एक दूसरे के ऊपर रख दिए, विच आर इरेगुलर, तो उनके बीच में थोड़ी गैप होगी। उस गैप में से mRNA का रिबन लाइक स्ट्रक्चर इज रनिंग अलॉन्ग विथ द tRNA। tRNA कौन सा है? F-mate वाला। ठीक है, अब गोइंग टू टेल यू कि यहां पर AUG इज अ स्टार्टिंग कोडॉन। उसके पहले कुछ 8 to 13 न्यूक्लियोटाइड्स के ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंटरी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि राइबोसोमल स्मॉलर सब यूनिट के अंदर जो rRNA होता है 16S, तो उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंटरी होते एंड दे आर लोकेटेड हियर। ये उसको गाइडलाइन है कि तू यहां पर अभी लगभग इसका स्टार्टिंग कोडॉन है। नाउ दिस इज स्टार्टिंग कोडॉन, दैट इज AUG, लेकिन AUG कोड्स फॉर मिथियोनिन। ठीक है, सबसे पहला जो tRNA आएगा दैट विल बी हैविंग द फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन इफ इट इज प्रोकैरियोटिक सेल। अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो फिर यहां पर ओनली द mRNA विल बी मेट, सॉरी tRNA विल बी मेट tRNA, मेट tRNA, it will not be F-mate। ठीक है, in case of eukaryotic organism। in case of prokaryotic organism and eukaryotic organism, स्टार्टिंग कोडॉन के जैसा ही कोड बीच में हो सकता है। तो whether it is eukaryotic सेल और prokaryotic सेल, दोनों जगह पर ये स्टार्टिंग कोडॉन छोड़ के अगर ऐसा AUG कहीं पर मिल जाता है, AUG, then it is not starting codon। इसका मीनिंग है कि वहां पर मिथियोनिन की जरूरत है उस प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए। तो दोनों में प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, ओनली दिस tRNA, that is mate tRNA, will be binding to this codon। It means प्रोकैरियोटिक सेल में AUG को रीड करने वाले दो टाइप के tRNA हैं, एक F-mate tRNA और दूसरा मेट tRNA। अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो दोनों जगह पर ओनली मेट tRNA विल बी रीडिंग दिस AUG कोडॉन। ये डिफरेंस मैं बता रहा हूं आपको इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब F-mate फॉर्मुलेटेड tRNA बाइंड हो गया वो सीधा, तो राइबोसोम की ये जो साइट है, दिस इज कॉल्ड एज A साइट, दिस इज कॉल्ड एज P साइट एंड दिस इज कॉल्ड एज E साइट। दिस इज अराइवल साइट और एक्टिवेटिंग साइट
which has the activator protein which will bring the next tRNA to bind with the next codon, and this is the peptidal synthetase size where the peptide bond formation will be there, means shifting of this amino acid to the chain. It will be carried out here in the peptidal side, and यहाँ से उसका एग्जिट होगा, जो tRNA एम्प्टी हो गया, जिसने अपना अमीनो एसिड दे दिया, वो एग्जिट हो जाएगा. सो अब ये प्रोसेस होगी इनिशिएशन की. इनिशिएशन की प्रोसेस होते समय जो जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों सेल में डिफरेंट है. जैसे कि अगर इनिशिएशन फैक्टर की हमने बात की तो IF1, IF2, IF3 है. ये अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर. वहां पर इसके आगे ई वर्ड लगाया जाता है, IF1. व्हाट डज इट मीन? कि ये यूकैरियोटिक सेल का प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं. इट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज इंडिकेटिंग दैट दिस इज द इनिशिएशन फैक्टर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. तो ऐसे कई ज्यादा फैक्टर है. यहाँ पर ओनली 3 है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, लेकिन यहाँ पर ज्यादा है, मे बी 9, 10 एक्सेट्रा. ठीक है. अब इसके बाद की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज इलॉन्गेशन. सो इलॉन्गेशन की प्रोसेस सेकेंड tRNA बाइंडिंग के साथ प्रोसीड होगी. अब यहां पर जो सेकेंड tRNA आएगा वो ए साइड से आएगा. पहला वाला आया था सीधा पी साइड से, वो इधर से नहीं आया, सीधा आया. और इसको यहां पर बाइंडिंग के लिए जो एनर्जी का यूज हुआ दैट इज जीटीपी. ये फैक्टर ने उसको बाइंड कर दिया, दैट इज इनिशिएशन फैक्टर ने हाइड्रोलाइज किया और फिर एनर्जी मिल गई. अब सेकेंड वाला tRNA आ गया अपना अमीनो एसिड, जो कि एक बात कि ये जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा तो दिस इनिशिएशन प्रोटीन्स फैक्टर्स आर गिवन आउट, रिलीज हो गए. ये से उस जो बिगर और लार्जर सब यूनिट इसके पास बाइंड हो गया, उसके पहले ये IF फैक्टर निकल जाते हैं. अब वो फैक्टर यहाँ पर नहीं है. एक फैक्टर क्या था कि tRNA नहीं बाइंड होना चाहिए, ऐसा एक फैक्टर था. दूसरा क्या था कि ये लार्जर सब यूनिट इसके साथ बाइंड नहीं होना चाहिए, ये था. और दोनों की एफिशिएंसी बढ़ाने वाला IF1 था. दोनों का काम परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए IF1 ने काम किया था. अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते ही ये सारे इनिशिएशन फैक्टर निकल गए तो ए साइड इज फ्री नाउ टू बाइंड द नेक्स्ट tRNA. सो नेक्स्ट tRNA विल ब्रिंग इट्स ओन अमीनो एसिड एंड इट विल बी अरेंज इन अ सेकेंड कोड. अब ये दोनों एक ही, उसकी ए साइड भी ऑक्युपाइड है, पी साइड भी ऑक्युपाइड है. अब यहां पर पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस नाम का जो एंजाइम है वो ये दोनों के बीच में, ये दोनों के दोनों चार्ज अमीनो एसिड है, देयरफॉर दे आर वेरी मच एनर्जाइज्ड. तो इसको ये शिफ्ट कर देता है इधर, इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर जाता. नाउ दिस इज एम्प्टी, दिस tRNA इज एम्प्टी. अब ये पूरा का पूरा राइबोसोम will be moving into this direction, means 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ इसका लोकेशन वो मूवमेंट करेगा. राइबोसोम मूव हो रहा, लेकिन ये tRNA यहां पर ही है. तो अब ये tRNA जो पहला tRNA था जिसने एफमेट लाया था अमीनो एसिड, वो शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और दूसरे ने जो लाया होगा वो वहां पर है. तो डाइपेप्टाइड फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड हुआ. कैसे? इसने उसको शिफ्ट कर दिया और ये एम्प्टी हो गया. तो एम्प्टी को इधर से निकलने के लिए अब खाली जगह मिल गई. सो ये राइबोसोम इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बाहर. ठीक है. सो दिस इज द वे in which the ribosome is shifting. So movement of ribosome along mRNA towards its third prime is called as translocation. ये ट्रांसलोकेशन हो रहा. अब ये इलॉन्गेशन की पहली प्रोसेस कंप्लीट हो गई, डाइपेप्टाइड फॉर्मेशन हो गया. अब आगे चल के तीसरा, नेक्स्ट ऐसा करते करते इट विल बी रीचिंग टू दी टर्मिनेशन कोडॉन. और टर्मिनेशन कोडॉन है, यहां पर देखिए इलॉन्गेशन फैक्टर भी बहुत सारे काम कर रहे. EF TU इलॉन्गेशन फैक्टर, थर्मल अनस्टेबल
इलोंगेशन फैक्टर, थर्मल स्टेबल, ऐसे नंबर ऑफ इलोंगेशन फैक्टर यहाँ पर है। तो पहली जगह पर ये दोनों काम कर रहे हैं और फिर डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन हुआ, आगे चल के और यहाँ पर टीआरएनए आएंगे और बाइंड होंगे। फाइनली इट विल रीच टू द टर्मिनेशन कोडॉन विच इज UAA और UAG और UGA, ये तीनों में से कोई एक होगा। तो इसके लिए ये दोनों को रीड करने वाला रिलीजिंग फैक्टर नंबर 1 यहां पर बाइंड हो जाता, सो दैट नो टीआरएनए विल बाइंड हियर। और ऐसा कोई टीआरएनए होता ही नहीं कि ये इसके साथ बाइंड होगा। अगर होने की कोशिश भी की, बिकॉज ओपन हाइपोथेसिस हम लोग देखेंगे तो यहां पर ये होने नहीं देता। कौन? रिलीजिंग फैक्टर। सो रिलीजिंग फैक्टर, ये दोनों को रीड करने वाला रिलीजिंग फैक्टर है RF1 और इसको रीड करने वाला फैक्टर है RF2, रिलीजिंग फैक्टर नंबर 2। मीन्स टर्मिनेशन कोडॉन अगर UAA है तो विच रिलीजिंग फैक्टर विल बी अटैच देयर? RF1। अगर टर्मिनेशन कोडॉन UAG है तो फिर कौन सा बाइंड होगा? RF1। लेकिन ये अगर है UGA देन RF2 विल बाइंड देयर। अब ये बाइंड हो गया तो फाइनली देखिए इसके ऊपर का लोड यहां पर गया, इसके ऊपर का लोड आगे जाएगा, इसके ऊपर का लोड आगे जाएगा। फाइनली टोटल जो लोड होगा वो फ्री हो जाएगा। तो उसके लिए RF3 काम करेगा, रिलीजिंग फैक्टर नंबर 3। पहली बात तो ये दोनों का एफिशिएंसी वो देखेगा कि ये बराबर काम कर रही है या नहीं। ये थर्ड वाला फैक्टर है, प्रोटीन है। एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट विल बी डन कि ये जो लंबी पेप्टाइड चेन बन गई उसका रिलीज, और ये दिस विल बी रिलीज फ्रॉम दिस टोटल मशीनरी। नेक्स्ट थिंग विल बी देयर कि ये लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट विल बी रिलीज फ्रॉम ईच अदर। mRNA फ्री हो जाएगा और उसका बाद में डिग्रेडेशन हो जाएगा। अगर इसी पेप्टाइड चेन की, पॉलीपेप्टाइड चेन की जितने भी अमीनो एसिड्स यहां पर आ गए, फॉर एग्जांपल ये वाला एक पहला अमीनो एसिड, उसका NH2 ग्रुप और उसका COOH ग्रुप, ये हो गया फर्स्ट अमीनो एसिड। फर्स्ट अमीनो एसिड इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज N-formyl methionine, F-mate। ठीक है। दूसरा कोई भी है लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एटसेट्रा, तो इट विल बी हैविंग NH2 ग्रुप हियर एंड COOH ग्रुप हियर। ये दूसरा है। इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया विद द रिलीज ऑफ एक वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो ये हो गया डाइपेप्टाइड। तीसरा N टर्मिनल एंड C टर्मिनल, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, अगेन वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, ऐसे लंबी चेन बन गई। अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन की और जरूरत है इसी पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो यहां पर ऐसे एक पॉलीपेप्टाइड एक राइबोसोम मूव कर रहा, दूसरी पॉलीपेप्टाइड दूसरा राइबोसोम, तीसरा। सो नंबर ऑफ राइबोसोमल आर सीन देयर एंड जितने राइबोसोम दिख रहे उतनी पॉलीपेप्टाइड चेन वो सिंथेसाइज करने जा रहा है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है। अब ये जो चेन बन गई, इसमें हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे मैंने लिखा। अब शॉर्टकट में लिखेंगे कि AA1, दिस इज अमीनो एसिड नंबर 1, AA2, AA3, AA4 एंड ऐसा फाइनल। तो ये जो सीक्वेंस है इस पॉलीपेप्टाइड चेन का, इस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। आफ्टर सिंथेसिस ऑफ द पॉलीपेप्टाइड, ये जो जानकारी है इट इज प्राइमरी प्रोटीन। इसका हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, जैसे कि ये लंबी चेन थी, अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, देन इट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर इसका ओवरलैपिंग हो गया, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक टर्शियरी स्ट्रक्चर दूसरे टर्शियरी स्ट्रक्चर दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अगर बाइंड हो गया, देन इट इज क्वाटरनरी। तो प्रोटीन का जो प्रोसेसिंग होता, पैकेजिंग होता, दैट इज क्वाटरनरी लेवल तक हो जाता।
ये लेकिन बाद में की प्रोसेस है, हमने यहां पर कंप्लीट कर ली उसी के साथ। सो इनिशिएशन देखा हमने, इलॉन्गेशन देखा एंड टर्मिनेशन देखा। सो ये वीडियो आप लोग बार बार देखेंगे, डिटेल्स मैंने दे दिए, इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग और इलॉन्गेशन एंड देन टर्मिनेशन। फाइनली दिस mRNA विल बी डिग्रेडेड। इसका लाइफ स्पैन जब तक ये ट्रांसलेट हो रहा, रीडिंग इसका हो रहा, तब तक ही ये रहेगा, बाद में इसको डिग्रेड किया जाएगा बाय द डिफरेंट एंजाइम्स। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी अनदर टॉपिक।